Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Odisha Judicial Services 2015. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए कुछ इस तरीके से आता है एग्जाम पेपर. यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, लिखा हो 2015. बुकलेट सीरीज ए अगेन 1.5 आवर का एग्जाम पेपर है. 100 क्वेश्चन है, ये 100 आइटम्स क्वेश्चंस. ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. नेगेटिव मार्किंग 25%. एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड लेके जाना है. मैंने ये ऑनलाइन डाउनलोड किया है एग्जाम पेपर, आप भी इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको ये. So question number 1 is which of the following article in Indian Constitution provides protection of certain rights regarding freedom of speech etc. to Indian citizens? That is article 19C इसका आंसर रहेगा obviously. Next is 2. Which of the following article in Indian Constitution gives the provision for the post of Prime Minister? That is 74 का 1D इसका आंसर रहेगा. देखिए 74 भी है, 1 भी स्पेसिफिक पूछा हुआ है. Next 3. Which of the following method is adopted for the election of the President of India? That is proportional representation. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? Manner of election of presidents article 55 में. Next 4. In which of the following article is the procedure for impeachment of the president mentioned? That is article 61. A इसका आंसर रहेगा. Next 5. By which of the following amendment Sikkim is associated with the Union? तो ये थी 36 अमेंडमेंट एक्ट, बट 36 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है और ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं. अमेंडमेंट कौन सी थी? 1975 वाली. सो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 6. अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन इट्स एनी फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर. इज फॉरबिडन इन द एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 17. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 7. ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट इन every high court shall be in which language? In English. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 348 में. नेक्स्ट इज 8. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स? दैट इज आर्टिकल 1. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 9. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द सिटीजनशिप? तो पार्ट 1 क्या है? Union and its territory. Part 2 citizenship. 3 fundamental right and 4 DPSP. तो आंसर क्या रहेगा? B. Next is 10. Right to equality is mentioned in which of the following articles of the Constitution? 14. 1 तो है ही नहीं, एक 14 आर्टिकल है सिर्फ. A इसका आंसर रहेगा. Next 11. Which of the following deals with the application of code to revenue code? Of the code मतलब CPC की बात कर रहे हैं. Of the code to revenue codes with the CPC. अब यहाँ भी कोड लिख दिया, आगे भी कोड लिख दिया. That is section 5. Anyways, A is the answer. Next is 12. Which of the following deals with summons to witness in the CPC? That is section 31. A is the answer. Next 13. Which of the following deals with particular to be contained in plaint? That is order 7 rule 1. A is the answer. Next 14. Which one of the following deals with the power of court to order separate trial? Order 1 rule 2. B is the answer. Next 15. Which of the following deals with objection to the jurisdiction है? To the jurisdiction proceedings in CPC. तो वो है 21C is the answer. Next 16. Which of the following deals with suits against foreign रूलर एम्बेसडर एंड वॉइस इन दी CPC? तो वो 86 B इसका आंसर रहेगा.
Next 17, which of the following deals with definition of court which passed a decree in the CPC? That is 37. A is the answer. Next 18, which of the following deals with second appeal on no other ground in the CPC? That is 101. B is the answer. Next 19, which of the following deals with compensatory costs in respect of false and vexatious claim or defenses? That is 35. A. B is the answer. नेक्स्ट इज 20, द बिल ऑफ लेडिंग इज साइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि शिप जो है कैरियर जो है शिप वाला वो बनाता है, वो देता है किसको, कंसाइनर को। मतलब जो सामान भेज रहा है एक पोर्ट से और दूसरे पोर्ट पर, तो इसको देना है, कंसाइनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, और किसने दिया है उनका एड्रेस नीचे होगा, यहाँ पर उसके साइन होंगे। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग कौन साइन करता है, कंसाइनर साइन करता है। ए इसका आंसर रहेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में तो कंसाइनी साइन करेगा नहीं, जो कंसाइनी को मान लो भेजना है तो जब वो रिसीव करेगा, रिसिप्ट के टाइम पर वो है जो साइन करेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग नहीं, उसके बाद तो फिर वो जो है डॉक्यूमेंट तो हैंड ओवर कर दिया कंसाइनी को ही। नेक्स्ट 21, इंटेंशन इज, इंटेंशन लिखा हुआ, इंटेंशन होना है फॉर नॉलेज ऑफ द एक्ट या फिर द पर्पस ऑफ डिजाइन विद विच एन एक्ट इज डन। तो दोनों हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी। Next 22, under section 320 CRPC for criminal intimidation which section of IPC is applicable? तो criminal intimidation की punishment कितने में है, 506 में, 506, definition 503 में है। तो आंसर क्या रहेगा फिर, A। Next 23, anticipatory bail means bail in anticipation of someone's arrest, arrest। A is the answer। provision कहाँ है, section 438 CRPC। Next 24, first information means information received. D is the answer. Next 25, which of the following deals with procedure of the magistrate taking cognizance? Where 343, A is the answer. Next 26, procedure when not convicted is stated in 254, A is the answer. Next 27, in case a civil suit in respect of same matter is pending, a criminal is not barred from exercising its jurisdiction। तो कौन सा है वो, तो सेक्शन है 145, 146, both C is the answer। Next 28, arrest under section 151 CRPC is possible only if the person concerned is believed to have a design to commit cognizable offense, if a non-cognizable, believed to have committed a cognizable, have design, A is the answer। Next 29, the amendment of section 224 and 26 CRPC came into effect on 31/12/2009, A is the answer, 31st December 2009। Next 30, section 151 is not arbitrary or unreasonable, does infringe fundamental right under article 21, 22 of constitution। both A and B, C is the answer, दोनों true हैं ये। Next 31, which of the following are outside the scope of Indian Evidence Act? Contempt proceedings, affidavit and proceeding before arbitrator, all of these, D is the answer। Next 32, accomplice is a person who commits a crime only as preparator या फिर commits a crime only as an accessory। दोनों हो सकते हैं, C इसका आंसर रहेगा, both A and B। Next 33, when a document is lost or destroyed, the provision of which of the following clause of 65 is not attracted? तो कौन सा अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो डिस्ट्रॉयड वाले क्लॉज कौन सी है, C है, तो अट्रैक्ट कौन सा नहीं हुआ, E और F अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो बोथ A and B, D इसका आंसर हो गया। Next 34, when the Indian Evidence Act did come into force? तो मार्च को लिखा है 15 यहाँ पर, तो मार्च 15, 1872 को जो है ये पास हुआ था बिल लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन गलत है ये, और केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट 35, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एडेड बाय एक्ट 31 ऑफ 1926, सी इज द आंसर। देखिए कितना डिटेल्ड पूछ रहे हैं, जिनकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या पूछ कर लेंगे इस क्वेश्चन को पूछ के, क्या नॉलेज देखना चाह रहे हैं।
Next 36, under which of the following section of Indian Evidence Act is not necessary that attesting witness should identify each other? सेक्शन 71 में बात की गई है अटेस्टेशन की, वो लिखा हुआ कि प्रूव व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन, तो नॉट नेसेसरी हो गया एक दूसरे का आइडेंटिफाई करना। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन ही क्या पूछा, थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन अगेन। Next 37, which provision of the following section of Indian Evidence Act will apply only when a matter is pending before the court and not otherwise? देखिए 53 क्या है, सिविल केसेस में कैरेक्टर एज अ कंडक्ट। 63 क्या है, सेकेंडरी एविडेंस। 73 क्या है, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग सील और अदर बाय द कोर्ट। और 83 क्या है, प्रिजम्पशन है मैप्स चार्ट्स एंड प्लान की। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर नहीं लगा, बिकॉज अब 63 अगर देखें सेकेंडरी एविडेंस कब होगा, जब केस पेंडिंग हो तभी तो उसको सेकेंडरी एविडेंस अप्लाई करेंगे। 53 भी अगर देखें तो कंडक्ट जो है कैरेक्टर के लिए कब रेलेवेंट होगा, जब वो पेंडिंग होगा केस में ऑब्वियसली। 73 भी कब करेंगे, जब वो पेंडिंग है केस। तो तीनों ही हो सकते हैं फिर तो। बिना मैटर के पेंडिंग के वाई द कोर्ट विल कंपेयर हैंड राइटिंग सिग्नेचर, और वाई द सेकेंडरी एविडेंस विल बी टेकन, वाई द कैरेक्टर इज रेलेवेंट फॉर द कंडक्ट इन सिविल केसेस। नेक्स्ट 38, देखिए दोबारा से पूछ लिया यहाँ पर 38। सेटिस्फैक्शन इज क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ क्रेविंग या क्लेम या रिमाइंडर या डिजायर। सेटिस्फैक्शन इज फुलफिलमेंट ऑफ अ क्लेम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, द वर्ड एक्विटेड इज डिफाइंड एज, कहाँ डिफाइन किया गया है वर्ड एक्विटेड, डिफाइन तो किया नहीं गया, तो फिर क्या रहेगा इसका, नन ऑफ दीज, डी इज द आंसर। कस्टडी से रिलीज करो या फिर हम जेल करो या फिर डेथ से करो तो एक्विटेड थोड़ी कहेंगे। जब पूरे केस जो लाइबिलिटी है केस की उससे रिलीज हो गया तब होता है एक्विटल, बट एक्विटेड वर्ड जो है डिफाइन तो किया ही नहीं गया है, डी इसका आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 40, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सेक्शन 44 में जो है बात की गई है फ्रॉड और कोलूजन की, तो लिखा हुआ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रॉड कोलूजन में तो एक्सटेंड हो जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर इन्फ्लुएंस के बारे में बात नहीं की गई तो इसमें नहीं होगा, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 41, नोविंगली स्टेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ओथ एज ट्रू दैट विच इज फॉल्स इज डेल्ट अंडर सेक्शन, कौन सा आईपीसी, दैट इज सेक्शन 181, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, पब्लिक सर्वेंट disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property under forfeiture is dealt now, कौन सेक्शन है ये, 217, 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, escape from confinement negligently suffered by public servant is dealt under 223, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44, absconding to avoid service of summons or other proceedings from a public servant is dealt under 172A is the answer. Next 45, attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapons is dealt with 398, A is the answer. 399 में क्या है, preparation for dacoity। 400 में क्या है, belonging gangs of dacoit। 401, belonging gangs of thieves। Next 46, death caused by an act done with the intent to cause miscarriage is dealt under section 314, A is the answer. Next 47, attempt to commit suicide is dealt under 309, 306 में क्या है, abatement to suicide, तो D इसका आंसर रहेगा। Next 48, abetting the commission of suicide is dealt under, अभी बताया देखिए 306, A is the answer। 307 में क्या है, attempt to murder। 308, attempt to culpable homicide। 309 अभी बता ही दिया ऊपर। नेक्स्ट 49, threatening any person to give false evidence is dealt under, that is 195, A, D is the answer। Next 50, which of the following is not an ingredient of abatement, instigating, engage in conspiracy, intentional aid, enticement नहीं है, D इसका आंसर रहेगा। नोट पूछा है ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इन व्यू ऑफ सेक्शन, सिर्फ इन व्यू लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सेक्शन 16(1) ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सूट फॉर इमोशनल प्रॉपर्टी जहाँ पर प्रीएम्पशन का राइट है उस पर अप्लाई नहीं होता, तो बी इसका आंसर रहेगा।
Next 52, which of the following is the limitation period under Article 43 of the Limitation Act? देखिए अब किसी ने पढ़ा होगा ये 43 आर्टिकल क्या है। वैसे जो उड़ीसा जुडिशल सर्विसेज का देते हैं एग्जाम वो आर्टिकल ज़रूर देखते होंगे, तो हो सकता है देखा भी हो आप लोगों ने। तो श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी है तो 3 ईयर्स का है ये, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 53, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू जजमेंट बाय कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ लिमिटेशन एक्ट कम्स इनटू प्ले। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो 30 डेज का टाइम पीरियड है, आर्टिकल है 124, सी इज द आंसर। कहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे बताया इसमें आर्टिकल्स ऑफ द स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट लिखना चाहिए था। नेक्स्ट 54, फॉर द सूट ऑफ कंपनसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट कम्स इनटू प्ले, दैट इज आर्टिकल 91, बी इज द आंसर। 3 ईयर का टाइम पीरियड है। Next 55, which of the following deals with exclusion of time in legal proceedings in Limitation Act? That is section 12, B is the answer. Repeat question है, 2016 में same question पूछा गया था। Next 56, on which of the following doctrine of limitation is found? Consideration of public policy, expediency, both. C is the answer. Next 57, Limitation Act does not in terms apply to, देखिए in terms से अलग अलग करना चाहिए, अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट जुडिक्शन पे अप्लाई नहीं होता है, तो आइदर ए और सी होना चाहिए, तो ये मैं कहूँगा ये ऑप्शन गलत हो गए फिर यहाँ पर, और ए रिट्स पर अप्लाई नहीं होता लिमिटेशन पीरियड। नेक्स्ट 58, एप्लीकेंट इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। petitioner हो गया, एनी पर्सन थ्रू होम एप्लीकेंट राइट टू अप्लाई, any person who is a state represented by the applicant, executor, all of the above, D is the answer। कहाँ पर डिफाइन किया गया है applicant? 2A of limitation act। फिर 59, अब ये है 2B, एप्लीकेशन क्या होता है? includes petition, A is the answer। चेक, बॉन्ड्स, ये सब क्या है? चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो C में दिया हुआ है, बॉन्ड की अलग डेफिनेशन है वो है D में। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स चेक, कंडीशंस एंड हुंडी। वे कंडीशन क्या? चेक और हुंडी है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिए, यहाँ पर ए और सी दोनों ठीक हैं इसमें, तो डी होना चाहिए था, ए एंड सी। नेक्स्ट 61, अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इफ देयर आर पेटेंट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी द मैक्सिमम ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर तो क्या होती है? बायर बिवेयर। पेटेंट डिफेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली सामने दिख रहे हैं, फिर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये हो लगेगा। फिर मैक्सिमम उब्रीमा फिडेस, अटमोस्ट गुड फेथ, वो भी लगेगी। दोनों ही हो गए सी, बोथ ए एंड बी, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ टीपीए, राइट ऑफ मीन प्रॉफिट। ये नहीं होता, डिक्री फॉर डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट, ये प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स होना चाहिए, ये भी गड़बड़ करती है यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू ए प्रोस्टिट्यूट फॉर फ्यूचर कोहैबिटेशन। फिर सबलीज ऑफ ए फार्म फॉर अ रिटेल सेल ऑफ ओपीएम, ये गलत है। तो इसमें ये सी वाला ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए ये कोई जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, रह सकते हो। अगर ये देखें तो दोनों फॉल कर जाते हैं। ये सेक्शन 6 है कि क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट तो यही है। और अगर सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला, तो ये ओपीएम वाला हो गया। फ्यूचर कोहैबिटेशन है, प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट 63, इंग्लिश रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज डील्स विद इंटरेस्ट टू राइज इन फ्यूचर, या फिर इंटरेस्ट इन प्रोएसेंटी। तो ये यहाँ पर प्रोजेंटिया लिखा है, ये प्रेजेंटिया ही होगा, ये ए होना चाहिए। प्रेजेंटिया मतलब इन प्रेजेंट, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो क्या प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकता है? हाँ, दोनों हो सकता है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 64, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टीपीए द ईजमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड या कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, यही लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 6 के क्लॉज सी में। तो अगर अलॉन्ग विद कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर हो सकती है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 65, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट रूलिंग इन इंडिया अ सर्वेंट ऑक्युपाइंग द प्रीमाइसेस ऑफ द ओनर डज सो एज अ लाइसेंसी, बी इज द आंसर।
Next 66, according to the Supreme Court ruling, renewal of lease is a continuation of old lease. अब ये कौन सी जजमेंट्स हैं अपने आप ही बना देते हैं, तो ये सिंपल भी तो पूछ सकते थे कि भाई रिन्यूअल ऑफ लीज क्या होता है. कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड लीज होता है ऑब्वियसली, न्यू लीज थोड़ी होगा. ए इज द आंसर. Next 67, in English law, a minor hold a legal estate in land. In India, a lease by minor is void. मोहरी बीबी, धर्मदास बोझ, पता है ना, सेम केस तो है, लीज नहीं कर सकता माइनर. Next 68, grant of license under the provision of Indian Easement Act must be express implied. Can be express, can be implied, तो सी इसका आंसर रहेगा. कहाँ लिखा हुआ है, कौन सेक्शन में लिखा हुआ है ये? सेक्शन 54 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट में. नेक्स्ट 69, सब्रोगेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 92 टीपीए कैन बी कन्वेंशनल और लीगल, आइदर ए और बी. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 70, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एज गिवन इन सेक्शन 14 टीपीए अप्लाइज टू बोथ मूवेबल इमूवेबल. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 71, contract of tenancy can be split up by court in eviction proceedings, operation of law. Yes, either A or B. C is the answer. Next 72, B makes a gift of residential house comprising 3 different units, one each to D enough, but E refuses the gift. Which of the following statement will apply? One unit will default back to B. Yes, A is the answer. Next 73, a right to recover cow trapped on the owner's land will be, it is an actionable claim. A is the answer. ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में कहाँ लिखा गया? टीपी में सेक्शन 130 में. नेक्स्ट 74, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ लॉ बोथ ए एंड बी. सी इज द आंसर. कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 100 टीपीए में. नेक्स्ट 75, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर टाइम फिक्स ऑफ मैरिज. ए गोज मैड, the contract becomes void. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 56 और इलस्ट्रेशन है B. नेक्स्ट 76, a contract for guarantee involves creditor, surety, principal, debtor, all of these. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 126 में of Contract Act. नेक्स्ट 77, A finds B's purse and gives it to him. B promised to give A बढ़ाना चाहिए, ₹50. This is a contract. Yes, B is the answer. Exception 2 to section 25 has done something already. Next 78, a promise for no consideration to give to B ₹1,000. क्या है ये? न्यूडम पैक्टम. क्या बोलते हैं इसको? न्यूडम पैक्टम. This is a void agreement. A is the answer. Section 25 में illustration है ये. Next 79, A supports B's infant son. B promises to pay his expenses in doing so. This is a contract. Yes, this is a contract. B is the answer. Next 80, A for love and extra affection promises to give his son ₹1,000. A puts his promise to B in writing and registers it. This is a contract. B is the answer. Section 25, exception 1 of Contract Act. Next 81, A, B, C jointly promise to pay D ₹3,000. D may compel A to pay his 3,000. D may compel B to pay 3,000. या फिर C. All of these किसी को भी बोल सकता है. उन्होंने jointly promise किया है ना, तो किसी को भी बोल देगा भी मेरे पैसे दो. वो आपस में देखें. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 43 और ये उसमें illustration है A. Next 82, agent not entitled to remuneration for business misconduct comes under which of the following? Section 220, A is the answer. Next 83, anyone of joint promisor may compel to perform under which of the following? अभी तो किया है ऊपर. Section 43. C is the answer. Next 84, bailment by several joint owner is dealt under which section? That is section 165. D is the answer. Next 85, which of the following dealt with specific relief act when perpetual injunction is granted? That is 38. D is the answer. Next 86, which of the following is false about decree of specific performance? It is decree in favor of both plaintiff and defendant. It is executed as a money decree. It is executed in the manner prescribed in Order 21 Rule 32.
इट इज एग्जीक्यूटेड एज अ मनी डिक्री, देखिए ये रॉन्ग हो गया। इट इज एग्जीक्यूटेड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन ऑर्डर 21 रूल 32, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ मेंशन किया गया है फॉर SRA फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन एंड RCR के लिए। तो जब वहाँ पर मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली, फिर मनी डिग्री का कैसे होगा? तो इसमें दोनों में एक ही करेक्ट होगा, तो बी जो है इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स पूछा हुआ है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 87, which of the following circumstances under clause C of section 16 specific relief act disqualifies the plaintiff from specific performance? Plaintiff incapable of performing या violates essential term, acts willfully in fraud of the contract and variance। देखिए तीनों ही जो है ये लिखे हुए हैं 16B में, ये पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली 16C का, तो कोई भी नहीं हुआ फिर तो इसमें से। अगर ये B लिखा होता तब तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहता। Next 88, which clause of the following section of specific relief act is an exception to the rule that only a party to the contract can be on it? That is 13 clause A is the answer. Next 89, which of the following cannot be enforced due to difficulty of supervision? तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं, तो डेली का काम है, तो की बिल्डिंग इन रिपेयर ये भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड लार्ज इक्विपमेंट ऑन दी कंजोर्टियम बेसिस, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट तो डेली बेसिस का काम है, होता ही रहता है, रिपेयर ही तो करना है, ये भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड लार्ज इक्विपमेंट ऑन द कंजोर्शियम बेसिस, कंजोर्शियम मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक चीज़ को उसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो सी इसका आंसर हो सकता है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट इज 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेंटेन अ सूट ऑफ अ पर्सन एंटाइटल्ड इन पोसेशन only the owner by the virtue of his title, a person having right of possession even though may be in construction, पैशन लिखा हुआ है, पोजेशन होना चाहिए, एंड नॉट इन एक्चुअल पोजेशन, पोजेशन वाला नहीं तो फिर टाइटल चाहिए, टाइटल के ऊपर है तो कौन होगा पोजेशन के लिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इज बोरोड फ्रॉम डिसीजन इन USA? अब बताओ क्या तो इसकी रेलेवेंसी है, ऐसे ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ इसका आंसर कौन करेगा? वैसे इसका आंसर होना चाहिए स्पेशल वैल्यू टू द प्लेंटिफ, ए इज द आंसर। आप जरा कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि इसका आंसर क्या है, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा ये 2015 का, उस टाइम पर उनको पता होगा क्या आंसर की आई हुई है, तो बताइए जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। नेक्स्ट 92, विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअली एडमिटेड ऑफ एक्सेप्शन, द कंडीशनल भी यूनिलेटरल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी वो भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डिफेंस इन सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एस्केलेशन ऑफ प्राइस, डिफेंस तो हो ही सकता है, डिसमिसल ऑफ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन अर्लियर एग्रीमेंट, तो आइदर ए एंड बी, सी इज द आंसर। Next 94, which of the following properties will be covered under section 14(2) of Hindu Succession Act? A husband created a will giving his wife absolute property, ये हो जाएगा। husband created a will giving wife limited property, limited वाला नहीं होगा, जहाँ पर भी limited rights को मिले हैं तो absolute नहीं बन पाएगी। तो 14 का 2 पूछा हुआ, जो restricted estate है, जो property restricted है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो B इसका आंसर रहेगा। Next 95, which of the following statement hold true regarding Hindu Succession Amendment Act? Women can now act as a karta, या फिर women can act as a karta of joint Hindu family before or after passing. Women can now be a karta of joint Hindu family. Women can be a karta, श्रेया विद्यार्थी वर्सेस आशीष विद्यार्थी, है ना, सी इज द आंसर, जजमेंट है ये। नेक्स्ट 96, a widow W had some properties as widow estate. She sold the properties to X before commencement of the Hindu Succession Act. Which of the following will be true? X will get the full ownership by the virtue of, अब देखो ना लिख रहा है ए विडो W had some properties as widow estate, उसकी विडो एस्टेट है, उसने सोल्ड कर दी X को बिफोर द कमेंसमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट पूछ रहे हैं ये, अब X को फुल ओनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब ये 1956 का एक्ट आने से पहले उसने बेच दिया है और वो विडो एस्टेट थी, तो उस टाइम पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी, तो उसने बेच दी। अब लेकिन जैसे ही उसने अक्वायर कब करी थी, वो पहले अक्वायर करी थी उससे पहले, और सेक्शन 14 में लिखा हुआ है बिफोर और आफ्टर, अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर,
तो एक्स को ओनरशिप मिल जाएगी बाय वर्च्यू सेक्शन 14, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 97, इफ अ मेल हिंदू डाइड possessed property after Hindu Succession Act came into force, leaving his widow as his sole heir, so the following statement will apply. Widow will inherit an absolute estate under section 14. Yes. Will not applicable. She will inherit under section 8. She will inherit under section 8 and her estate will become absolute. Yes, C is the correct answer. Next 98, disinheritance under Hindu Succession Act as a result of conversion to another religion is applicable to convert himself, is applicable both to children born after and before conversion. No. वो से जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं कन्वर्जन के, उन पर ही अप्लाई होगा। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99, इन केस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू? इट कैन बी अपीयर्ड अगेंस्ट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये अपील्ड होगा, यहाँ पे अपीयर्ड नहीं है, अपील्ड अगेंस्ट। आगे लिखा हुआ इट कैन ओनली बी रिव्यूड अंडर सेक्शन 115। देखिए रिव्यू तो कहाँ पर होता है, 114 में, तो ये ऑप्शन तो गलती हो गया। फिर इट कैन बी इशूड नॉट अंडर 226। अब देखिए ये नेगेटिव पूछ लिया यहाँ पर ये। फिर फर्दर रेमेडी इन रिवीजन अंडर सेक्शन 115, तो ये ठीक है, बट रिवीजन कहाँ होता है? जूरिसडिक्शनल एरर पर, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर आंसर क्या हुआ? फिर ए इज द आंसर। नेक्स्ट 100, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14(2) ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सिविल कोर्ट इंक्लूड्स कोर्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर एज वेल एज रेवेन्यू कोर्ट। तो देखिए सेक्शन 14(2) में क्या लिखा हुआ है? कोई अगर रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है फीमेल की जो उसने एक्वायर की है थ्रू गिफ्ट या फिर लीव मेंटेनेंस या फिर डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो देखिए जो ज़्यादा प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं वो कौन देखता है? डिप्टी कमिश्नर। रेवेन्यू के मैटर्स कौन देखता है? डिप्टी कमिश्नर। अब मान लो प्रॉपर्टी का मैटर इसमें रेवेन्यू भी जो रेवेन्यू कोर्ट है वो भी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली तो दोनों हो गए फिर ये। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सी, बोथ ए एंड बी। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस दी प्रीलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज 2015। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.